Google News Initiative in the year 2018 started this mission to in order to train. They have actually trained 200 journalists in India. One among the 200 journalists is me, who in the course of time will train furthermore journalists and also journalism students like you. So, in order to support quality journalism and to curb the spread of disinformation and fake news in India. So, this is all about Google News Initiative and News Sense, the organization which I have founded 3 years back, works in the field of social and developmental communication. We work in the solution journalism concept where we also debunk fake news as well as give training, import training to students, academicians, then journalists, and we have conducted numerous training with Cyber Cell, Kolkata Police, CID. Since fake news is a monolithic term, we understand it in the form of a misinformation and disinformation. मैं इसके बारे में भी आपको डिटेल्स में बताऊंगा what exactly is misinformation and what exactly is disinformation. अभी आप पूछेंगे why fake news, क्यों फेक न्यूज इतना ज्यादा पूरे देश में फैल रहा है, पूरे विश्व में फेक न्यूज का बहुत ज्यादा बोलबाला है. अब हर दिन यू कम अक्रॉस फेक न्यूज, ये क्यों होता है? तो देयर आर more or less हम लोगों ने we have identified three objectives with which fake news come to surface. Since अभी we have digital democratization, since every one of you have your own profile in social media platforms which empowers you to voice your thing in the right way, but at the same time it also gives opportunity to those who try to create misinformation, who try to create a kind of chaos or misunderstanding among the people, among the community, among the countries. So in order to, with those objectives, this fake news come into existence. To specify, there are three main objective with which fake news come to surface. Basically, first and foremost is financial, obviously lucrative ads. With all those fake news, जो फेक न्यूज सरफेस होते हैं उनके साथ जो एड आते हैं उनसे बहुत ज्यादा रेवेन्यू अर्न किया जा सकता है. मोर एंगेजमेंट मीन्स more ads and more ads means more earning. Secondly, there are ideological and political objectives with which the fake news is organized and it has been disseminated. And lastly, some people are there who are very fame hungry, name and fame, चाहिए instant name and fame, and in order to have in order to have that easy fame, they they resort to create some fake news कि जल्दी से जल्दी हम लोगों को नेम फेम मिल जाएगा, हम लोग पॉपुलर हो जाएंगे, सोशल मीडिया में हीरो बन जाएंगे, और दिस काइंड ऑफ विद दिस ऑब्जेक्टिव this kind of thing come into existence. So these are the mainly three objectives with which fake news come to surface. Or one and first and foremost thing I will like to tell you everyone, I will advise you everyone कि आपके पास अगर कोई भी फेक न्यूज आए, कोई भी किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, ट्विटर में आए, तो then please don't share those information, don't share or circulate those information, since if you share those information it means you are also a carrier of fake news. So first and foremost thing, without proper verification, never ever share or circulate any kind of information that comes to your social media platforms, mainly on Facebook, mainly on WhatsApp and Twitter. In order to understand the misinformation ecosystem in India, we have to understand the changing landscape, information landscape in India. We all know
India's first newspaper came into existence in the year 1780, January 29. That is Hickey's Gazette. Then, after more than 200 years, India's first radio program was disseminated through signals, radio signals, in the year 1924, May 16. Television in India began on 15th September 1959. So you can understand the difference. First newspaper more than 250 years ago, then radio, and then TV. India today, now India is world's largest print media market, where large number of newspapers every day is printed and circulated. You can see the numbers. It is more than 70,000 newspapers in India, 100 million copies sold every day. Now, because of this lockdown and pandemic, we are resorting to online version of the newspaper. So there is a little uh, little reduction in the circulation of the newspapers, but still people love to read newspapers, so it is in circulation. We in India right now have more than 690 plus satellite channels, out of which 80 more than 80 are news channels which are either in Hindi, English, or regional languages, including Bengali. Now, digital media. So, in the year 2014, we can see that there are 254 million internet users in India. Today, in India, there are more than 500 million internet users in India, and out of which 530 million, uh, uh, there are 530 million smartphone users. The data is based, is recorded in the year 2018. Then we have 541 million, more than 541 million Facebook users, which is even more than America, which have 240 million Facebook users. We have monthly WhatsApp active user in India is more than 200 million WhatsApp active users in India. The objective of news and information is to empower and to inform people. लेकिन फेक न्यूज ठीक उल्टा काम करती है, इन्फॉर्म तो करती है लेकिन नॉट द राइट इंफॉर्मेशन. They create, they mislead all kind of information, and that takes the shape of a very confusing state, which sometimes leads to fatal death, lynching of people. And that's why fake news, understanding fake news and to stop the curve of fake news became very important. क्योंकि वेलोसिटी क्रिएट्स वेरासिटी. एक एक सिंगल व्हाट्सएप रूमर, यू कैन सी द हेडलाइन, a single WhatsApp rumor has killed 29 people in India and nobody cares. एक गलत इंफॉर्मेशन फेसबुक व्हाट्सएप में शेयर हुआ जो पूरे गांव में फैल गया, और उसके वजह से 29 लोगों की जाने गई है. तो इस वजह से फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको रोकना. सो यू कैन सी lynching of people in Jharkhand. The incidents are real. इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स इंडिया में आए हैं वेयर पीपल आर किल्ड बिकॉज पीपल प्रिज्यूम्ड, क्योंकि फेक न्यूज़ निकला, व्हाट्सएप में र्यूमर सर्कुलेट हुआ कि चाइल्ड लिफ्टर है, बच्चा उठाने वाला है, एंड अकॉर्डिंगली पीपल को गॉट कॉट ऑफ देम, दे गॉट देम, एंड इनफेक्ट इतना मारा, इसके वजह से इनकी डेथ हो गई. बहुत बहुत सारे इंसिडेंट्स ऑल ओवर इंडिया में हम लोग देख सकते हैं कि इस तरह के इंसिडेंट्स. द व्हाट्सएप रूमर विच took the shape of a rumor, and people resort to killing of the people without identifying the original information. So आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन में कि पूरे देश में बहुत सारे पूरे देश में बहुत सारा इस तरह का इंसिडेंट्स घट चुका है. मेनली इफ वी
see West Bengal or northeastern states, mainly Jharkhand, Assam, Tripura, then North Bengal, then West Bengal के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी बहुत सारे इंसिडेंट्स आए हैं. साउथ के भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में स्टेट्स में इस तरह के इंसिडेंट्स आए वेयर पीपल वेर किल्ड बिकॉज ऑफ द सर्कुलेटिंग फेक न्यूज. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फेक न्यूज, क्योंकि लोग इसे फेक न्यूज के नाम से नहीं कहता है. जैसे कि आई हैव ऑलरेडी सेड कि फेक न्यूज इज जस्ट अ मोनोलिथिक टर्म, एंड फेक न्यूज इज एक्चुअली अंडरस्टैंड बाय these two terms, misinformation and disinformation. Now what is misinformation? Misinformation is information that is false, but the people who is sharing or disseminating the information believes it to be true. इस तरह के लोग बहुत ज्यादा होते हैं. हम लोग अपने घर में भी देखते हैं. हमारे घर में जो एल्डरली हमारे जो रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, दे कीप्स ऑन व्हेन दे गेट एनी इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट्सएप, दे जस्ट शेयर द इंफॉर्मेशन विदाउट वेरीफाइंग. उनको लगता है कि वो सही है, उनको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन देने से अगले को फायदा होगा, लेकिन दे डोंट नो वेदर द इंफॉर्मेशन वाज राइट और रॉन्ग. हियर जो शेयर कर रहा है उसको खुद को पता नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन सही है या गलत है. लेकिन डिस इन्फॉर्मेशन में वी कैन सी डिस इन्फॉर्मेशन इज द इंफॉर्मेशन दैट इज फॉल्स, एंड द पर्सन हु इज शेयरिंग और डिसमिनेटिंग द इंफॉर्मेशन also knows it is false. So it is a deliberate lie, intentional lie. So हम लोगों को कुछ इस तरह के भी इंफॉर्मेशन आते हैं जो जानबूझ के इन ऑर्डर टू हार्म a community, in order to harm an individual, when the information is disseminated with an intention, that becomes disinformation. So we can easily understand what is misinformation and what is disinformation. Misinformation is without intention, when we share any kind of information on our social media platforms without verifying, then it is misinformation. And disinformation means any information which we keep on sharing with an intense objective, with an intention to harm the image of an individual or a community or an organization, then it is disinformation. Misinformation and disinformation 7 तरीके के होते हैं. There are 7 types of mis or disinformation. मिस एंड डिस इन्फॉर्मेशन. सटायर और पैरोडी, कभी कभी विदाउट इंटेंशन टू हार्म, जस्ट किसी का मजाक उड़ाने के लिए कोई किसी तरह का मजाक हम लोगों ने वीडियो बना दिया और उसको हम लोग शेयर करते हैं इन ऑर्डर टू सटायर और पैरोडी. दैट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन. मिसलीडिंग कंटेंट, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टू फ्रेम एन इशू और इंडिविजुअल, ये डिसइंफॉर्मेशन के कैटेगरी में पड़ता है, क्योंकि व्हेन वी शेयर इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू harm the image of an individual, harm the image of an organization or a community, it becomes it is basically known as misleading content, where the content is misleading. So with the intention to harm an individual and or a community. अगर कहा जाए imposter content, when a genuine source is impersonated. कभी कभी हम लोग BBC, रॉयटर्स, देन टाइम्स नाउ, देन NDTV का हवाला देते हुए जब इंफॉर्मेशन व्हेन वी शेयर कंटेंट, दैट क्योंकि सोर्सेस आर जेन्युइन, व्हेन वी कोट प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI, व्हेन वी कोट NDTV, व्हेन वी कोट इंडिया टुडे, तो लोग बिलीव करते हैं कि अच्छा NDTV में आया है, अच्छा इंडिया टुडे में आया, अच्छा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में आया, रॉयटर्स में आया, BBC में आया, तो लोग ट्रस्ट करते हैं इस तरह के इंफॉर्मेशन, एंड which sometimes are used. So we can say that this type of misinformation and disinformation is known as imposters content. Then fabric content. New content in 100% is
false, deceive, designed to deceive or do harm. कभी कभी picture is real, picture is shared real, but the content with which the picture or the video has been shared is wrongly used. We will share the example for your understanding. मैं इस presentation में आगे आपके साथ share भी करूंगा कि इस इन सारे तरीके का जो जो हम लोग 7 टाइप्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं, उनका भी एग्जांपल मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट इजीली. False connection when headline, visual or captions don't support the content. कभी कभी हम लोग हेडलाइन बहुत किसी रिनाउंड न्यूज़पेपर्स का हेडलाइन बदल के, कंटेंट इज राइट बट द हेडलाइन इज चेंज इन सम अदर वे in order to dupe, in order to fool, or in order to लोगों को मिस मिस इन्फॉर्मेशन, मिस कम्युनिकेशन फैलाने के लिए जब हेडलाइन गलत तरीके से यूज़ किया जाता है और उस न्यूज़पेपर का क्लिपिंग को हम लोग इमेज के तौर पे स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे शेयर किया जाता है या फिर फेसबुक में शेयर किया जाता है. दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन. False content when the genuine content is shared false with false contextual information. Basically, image is right, video is right, but the content with which the information is shared is the context with which the information is shared is wrong. तो ये भी एक तरीका है, is also one of the type of misinformation and disinformation. Manipulated content when the genuine information or imaginary is manipulated to deceive. कभी कभी हम लोग फोटो को फोटोशॉप करके देन वीडियो को मॉर्फोन करके दूसरे तरीके से प्रेजेंट करते हैं. when we manipulate the content, that is also one type of misinformation and disinformation. जैसे कि आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, पुशिंग पेट्रोल प्राइस टुवर्ड्स 100 टू सेव पीपल फ्रॉम द हैसल ऑफ फाइंडिंग एग्जैक्ट चेंज. तो इसमें ये हेडलाइन पढ़ने से ही आपको पता चल जाता है कि खुचरा सब दे नहीं पाता, इस वजह से पेट्रोल प्राइसेस को बढ़ा दिया गया है. ये तो कोई तर्क नहीं हो सकता. ये दिस इज a kind of headline which is created in order to satire or parody, in order to do the parody or satire. बट इस तरह के इंफॉर्मेशन सर्कुलेट भी होने लगते हैं विदाउट नोइंग, अननोइंगली वी कीप ऑन शेयरिंग और दिस लीड्स टू द कंसेप्शन. बार बार आप शेयर करो तो वो इंफॉर्मेशन गलत भी सही दिखने लगता है. सटायर और पैरोडी ये भी आप देख सकते हैं हेडलाइन. सऊदी अरेबिया बिहेव्स फर्स्ट फीमेल रोबोट सिटीजन. ये भी एक तरह का फेक, ये एक तरह का नहीं, पूरी तरह से ही फेक इंफॉर्मेशन है. अगर रोबोट अपना सर बिहेव कर दे तो ये इतना बड़ा न्यूज़ नहीं हो सकता. और देयर आर सर्टेन न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन और ब्लॉग, यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क्लेमर में ऑलरेडी है कि Duffel blog is a parody of a news organization and all content it publishes is satirical in nature. कभी कभी इस तरह के वेबसाइट्स भी बहुत सारे होते हैं जो शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन बट which are with an objective to satire, with an objective to create parody. तो इस तरह के इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है. जैसे कि मैंने बोला था कि कुछ अकाउंट्स भी क्रिएट किया जाता है. देखने से आपको लगेगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया का लोगो है, एएनआई का लोगो है, टाइम्स नाउ का लोगो है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरह के हैंडल्स गलत हैंडल्स हैं. दिस आर नॉट द ऑफिशियल हैंडल्स ऑफ द रिस्पेक्टिव मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस. नेम भी आप ध्यान से देखेंगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं है, लाइम्स ऑफ इंडिया है. एएनआई के जगह में एएन स्मॉल आई लिखा हुआ है. टाइम्स नाउ के जगह पे टाइम्स हाउ लिखा हुआ है. एंड दिस फेक अकाउंट्स क्रिएट इंफॉर्मेशन, shares information which also leads to uh, uh, misconception and creating chaos and mis communication among the people. जैसे कि मैंने बोला था कि पोस्टर्स
अकाउंट बीबीसी सीएनएन का नाम देके गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है। एक ही तरह का इंफॉर्मेशन है, लेकिन अलग अलग न्यूज़ एजेंसी, मतलब ऑथेंटिक क्रेडिबल सोर्सेस का नाम हवाला देते हुए इस तरह का लिस्ट जारी किया जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन इज फुल्ली फेक एंड पीपल आर मेड टू बिलीव दैट इंफॉर्मेशन इज राइट। इस तरह का इंफॉर्मेशन भी हमेशा सर्कुलेट होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में। वीडियो, ये दूसरा एक सर्कुल सेलिब्रेशन का वीडियो है, लेकिन इसको शेयर किया गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, सेइंग कि सम मुस्लिम पीपल्स आर सेलिब्रेटिंग इंडियाज लॉस टू पाकिस्तान। इन दिल्ली में इंडिया जब क्रिकेट मैच 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया जब हार गई थी पाकिस्तान के साथ, तब कुछ इंडियन मुस्लिम्स इसको सेलिब्रेट करते हुए देखे गए। लेकिन बाद में जब वीडियो को वेरीफाई किया गया, वीडियो वेरिफिकेशन किया गया, तो इट वाज फाउंड दैट द वीडियो इज इट इज नॉट एक्चुअली द केस। और ये पहले दूसरे एक सेलिब्रेशन, दिवाली सेलिब्रेशन का वीडियो था, जो रॉन्गली यूज किया गया टू क्रिएट ए सिचुएशन ऑफ मिस कम्युनिकेशन बेसिकली। फॉल्स कंटेंट, इस तरह के फॉल्स कंटेंट, वीडियो इज राइट बट द context with which the information is shared is wrong। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये फैब्रिकेटेड कंटेंट है, जैसे कि सऊदी अरबिया, सऊदी प्रिंस loses $350 million and 5 of his wife in 6 hours at a casino। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस तरह का कोई इंफॉर्मेशन सामने नहीं आया। व्हेन वी क्रॉस चेक विद द authentic sources, we never found such kind of information, and this is very wrongly and fabricated content। यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये ओरिजिनल पिक्चर है, यहाँ कोई चूहा या फिर you cannot see any mouse, but the headline is created, Hindu man marries a rat claiming it is the reincarnation of his dead wife करके इस फोटो को दिया गया है। लेकिन this is the original photo where he is married in a normal way, but here a mouse has been photoshopped and created और वहाँ पे बिठा के इस तरह का शेयर किया गया। तो इस तरह के बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मैनिपुलेटेड कंटेंट शेयर किया जाता है और लोगों के अंदर मिसकम्युनिकेशन और एक कंफ्यूजन का स्टेट क्रिएट करने की कोशिश किया जाता है। 8 रीजन वाई मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन इज क्रिएटेड एंड शेयर्ड। जब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि पुअर जर्नलिज्म, बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ डर्थ, अचानक से कुछ ब्रेकिंग और क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए लोगों के अंदर द इट्स ए काइंड ऑफ पुअर जर्नलिज्म वी कैन से, टू पैरोडी, टू किसी का मजाक उड़ाने के लिए, किसी इंडिविजुअल, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी ग्रुप, किसी कम्युनिटी का मजाक उड़ाने के लिए पैरोडी का यूज किया जाता है, और इस वजह से मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट किया जाता है टू प्रूव और to prove certain political parties, certain organization, in order to prove that the opposition party is wrong, that the other organization is wrong। और इस वजह से भी कभी कभी मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है। पैशन, कुछ लोगों का पैशन ही होता है खुराफाती करने का। कुछ लोग बैठे बैठे गलत चीज़ें सर्कुलेट करना चाहते हैं, मिसकम्युनिकेशन क्रिएट करना चाहते हैं, बहुत तरह से फोटोशॉप करते हैं, मॉर्फन करते हैं वीडियोस को, उस हिसाब से शेयर करते हैं। कुछ लोगों का पैशन ही रहता है। पार्टीजनशिप, जैसे कि मैंने बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज मेनली बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ यूज़ करता है। हाल ही के दिनों में हम लोगों ने नॉट ओनली इन इंडिया, political parties across the political party, people are using fake information, fake news in order to malign the opposition party। वेस्ट बंगाल में भी हम लोगों ने बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज को देखा कि फेक न्यूज़ को हथियार बनाने का
in order to malign, dishonor a particular individual, particular leader, or particular party or an organization. Profit, as I have already said, कि बहुत बड़ा जब कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर होता है सोशल मीडिया में, अगर मैकेनिज्म देखा जाए, social media earns revenue on the basis of how the information or the content became viral. The more you share the information, the more it gets hit to the ad column, and more hit to the post means more revenue, means profit. Political influence, propaganda, जैसा और I have already said political influence रहता है, propaganda, one sided कम्युनिकेशन कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई इंडिविजुअल या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी करती है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन इज क्रिएटेड. Next, we will see how to verify photo, or how to verify photo. There are certain tools. I will introduce those tools. I can show you as well how it can be done. Google reverse image search. It is one of the tools through which we can verify whether the photo is right. अगर कोई किसी तरह का रॉन्ग फोटो हम लोगों को लगे कि ये फोटोशॉप किया हुआ है, तो वी कैन चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द फोटोग्राफ ऑफ द इमेज बाय यूजिंग गूगल रिवर्स इमेज सर्च. मैं आपको दिखाता हूँ हाउ इट कैन बी यूज्ड. हियर यू कैन सी, गूगल न्यूज पे जा सकते हैं. यहाँ पे जाने के बाद दिस इज द गूगल इमेज सर्च ऑप्शन, एंड यहाँ पे हम लोग अपलोड कर सकते हैं वो फोटो जो जो हम लोगों को मिसलीडिंग लगे, उसको हम लोग वो यूआरएल यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं. वी कैन यूज दैट इमेज हियर एज वेल, और फिर वी कैन सर्च दैट इंफॉर्मेशन वेदर द इंफॉर्मेशन इज राइट और रॉन्ग. This is the method. Then we can upload by Google reverse image search से हम लोगों को तीन चीजें पता चल सकती है. How the image is sold, how you can tell whether the image is sold, और कब ये फर्स्ट इंटरनेट पे अवेलेबल था. We can trace the origin of the image. You can tell in what context an image was first used. अगर वो फोटो हम लोगों को पता चलता है, यू स्टिल हैव टू वर्क आउट ऑफ सोर्स. जैसे कि ये एग्जांपल, इन 2017 एक इमेज निकला था क्लेमिंग टू शो दैट योंग दलाई लामा इज विद महात्मा गांधी, और ये लाइफ मैगजीन करके एक बहुत पॉपुलर मैगजीन है, उसके कवर पेज पे भी पब्लिश हुआ था, और इसको सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा वायरल किया गया इन 2017. Now when we did the reverse image of the image, और ये इमेज को हम लोगों ने डेस्कटॉप पे रखा, और गूगल रिवर्स इमेज में जाके when we did the search, we came across an article by Hindustan Times जहाँ पे दलाई लामा खुद ही बोलते हैं I met गांधी in my dream. तो इमेज में, क्योंकि इमेज में दिखाया गया है महात्मा गांधी दलाई लामा के साथ है, लेकिन दलाई लामा खुद ही बोल रहे हैं कि वो जिंदगी में कभी महात्मा गांधी से मुलाकात उनकी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने सपने में ही महात्मा गांधी को एक बार देखा था. इसका मतलब ही हैज नेवर विजिटेड और ही हैज नेवर मेट महात्मा गांधी इन हिज लाइफ टाइम. इस तरह का इमेज भी बहुत सारा सर्कुलेट होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, मेनली ट्विटर और व्हाट्सएप में. और जब हम इस इमेज को गूगल रिवर्स इमेज करते हैं, इस इमेज को गूगल रिवर्स इमेज करते हैं, देन वी केम अक्रॉस एन आर्टिकल बाय बीबीसी. तो यहाँ अगर लिंक पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि दिस इज द ओरिजिनल इमेज वेयर इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज सीन मीटिंग नवाज शरीफ ड्यूरिंग हिज सरप्राइज विजिट टू पाकिस्तान. उस समय पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे. वो अचानक 2004 में
No, it was after Narendra Modi became the Prime Minister of the country. While coming back from a foreign trip, he made a surprise visit to Pakistan. He met नवाज शरीफ, और ये फोटो ही गलत तरीके से हम लोग आगे देख सकते हैं कि किस तरह से ये फोटो गलत तरीके से यूज किया गया। चेहरे को यहाँ पे फोटोशॉप करके अलग अलग चेहरा, ये चेहरा इज राइट, बट दिस हैज बीन फोटोशॉप। नवाज शरीफ के फोटो चेहरे को हटा के हाफिज सईद, who is one of the most dreaded terrorist, the most wanted terrorist in India, उनके साथ हाथ मिलाते हुए दिखाया गया, which creates a kind of misinformation, confusion among the people, and which sometimes leads to wrong interpretation of the information. ये इंफॉर्मेशन हम लोग देख सकते हैं, एक बीच बीच में इस तरह के इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होते रहते हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विद अ ट्रूप ऑफ डांसर्स। लेकिन अगर हम इसको गूगल रिवर्स इमेज सर्च करते हैं, देन वी कम अक्रॉस, वी हैव टू कीप ऑन सर्चिंग द इमेज, देन वी कम अक्रॉस द ओरिजिनल पिक्चर। और इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू कहीं पे भी नहीं है, बट इट हैज़ बिन रॉन्गली इंटरप्रिटेड एंड रॉन्गली यूज्ड in the earlier segment as we have seen। इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स ये भी हम लोगों ने देखा कि एक फोटो को किस तरह से यूज किया गया है। किम जोंग को बिठा के, व्लादिमीर पुतिन को बिठा के, नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर को बिठा के इस तरह के इमेजेस वायरल हुए हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट एन सेंटिमेंट ऑफ हाउ पावरफुल आवर रेस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट्स आर। जब हम इस इमेज को गूगल रिवर्स इमेज करते हैं, देन वी कम अक्रॉस द ओरिजिनल इमेज। ओरिजिनल इमेज में आप देख सकते हैं चेयर खाली है, लेकिन फेक इमेज में देख सकते हैं कि ये बैठे हुए। दिस इज द ओरिजिनल इमेज। द चेयर इज एम्प्टी, लेकिन अपने अपने लीडर्स को सबने बिठा दिया और अकॉर्डिंगली इट वाज प्रोजेक्टेड एंड सर्कुलेटेड। इस तरह के इंफॉर्मेशन होते हैं, हम इसको अपने क्रोम एक्सटेंशन में भी ऐड कर सकते हैं, so that we can keep on sharing। Secondly, there is another tool called reverse image tool, reverse image search। रिवर्स इमेज सर्च गूगल से हम लोगों ने किया। ये tineye.com करके एक वेबसाइट है, इफ यू गो देयर, वो गूगल का प्रोडक्ट है। दिस इज सेपरेट प्रोडक्ट, बट इट इज अ फ्री टूल वेयर वी कैन वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द इमेज। tineye.com अगर जाते हैं तो हियर ऑल्सो वी विल हैव एन ऑप्शन रिवर्स इमेज सर्च। इसमें दो तीन चीजें हो सकती है। एक तो इमेज जहां हमको कंफ्यूजन लगता है, उस इमेज को अगर हम लोग क्रॉप करके उसको रिवर्स इमेज करते हैं, वी कैन इजिली come across the original information available on the internet। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं कि एक इमेज को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है। सोनिया गांधी एंड प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स को एक साथ बैठे हुए दिखाया जा रहा है, लेकिन when we cropped the image of Sonia Gandhi and then did the reverse image, we found this is the original image। अलग अलग बिठाया है, लेकिन उसको गलत तरीके से बिठाया गया है। ये इमेज हम लोग बार बार देख सकते हैं, बार बार ये इस तरह के इमेज सर्कुलेट होते हैं, लेकिन जब हम इसको क्रॉप करते हैं, महात्मा गांधी के फोटो को क्रॉप करके, फिर व्हेन वी डू द गूगल रिवर्स इमेज और tineye reverse image search, then we will come across the original picture, and this is the original picture। ये इमेज, ये यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान ने ये इमेज शो किया गया था, जहाँ पे दिखाया गया था कि किस तरह से कश्मीर में कश्मीरी वीमेंस आर इंजर्ड ड्यूरिंग ए गन बैटल, और उसको पाकिस्तान ने वहाँ पे प्रेजेंट किया। लेकिन इसी इमेज को हम लोगों ने यहाँ से क्रॉप किया और इसके बाद इसको सर्च किया गया, देन वी कम अक्रॉस this original picture। It is of
2014 गाजा वार। 2014 में गाजा वार के समय एक अमेरिकन फोटोग्राफर ने इस फोटो को क्लिक किया था, लेकिन इट हैज बीन टेकन सो सीरियसली एंड ये फोटो यूनाइटेड नेशन तक पहुंच गया विद एन एलिगेशन दैट इन इंडिया द कश्मीरीज आर नॉट सेफ, and it has been wrongly interpreted and wrongly used by Pakistan in United Nations against India. टाइम फिल्टर हम लोग यूज कर सकते हैं। इस तरह के भी इमेजेस हम लोग देख सकते हैं कि एक वशीरहाट राइट के दौरान एक इमेज बहुत वायरल हुआ था जहाँ पे दिखाया गया था कि बादुरिया में हिंदू महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रही है। और ये इंसिडेंट बशीरात रायट हम लोगों को पता है जुलाई 2017 3 साल पहले हुआ था। तो व्हेन वी ये इमेज बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुआ था, व्हेन वी डिड द सर्च, इमेज सर्च यूजिंग द टूल्स गूगल में अगर हम लोग ये टूल्स यूज करते हैं, टाइम भी यहाँ पे हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। फर्स्ट 1 ईयर, फर्स्ट 1 आवर, 24 आवर। Excuse me, sir. यस, Sir, यस, sir, we can't see your presentation screen. ओके, We can't see your presentation screen. वेट अ सेकंड। Okay, sir. Now you can see. Yes, sir. Okay. इस तरह से टाइम फिल्टर मैं कहाँ से आप लोगों को दिखाऊं, शुरू से दिखाऊं? टाइम फिल्टर से हम लोग देख सकते हैं, टूल्स है गूगल में, बहुत सारे के टूल्स है। टूल्स में अगर क्लिक करें तो टाइम से भी वी कैन सर्च, क्योंकि इंसिडेंट कब हुआ है उस डेट के आसपास अगर ये फोटो मिलता है तो वी कैन फाइंड आउट वेदर द इंसिडेंट इज राइट और रॉन्ग, वेदर द इमेज इज राइट और रॉन्ग। और जब हम लोगों ने इसको सर्च किया तो वी फाउंड दैट इट इज द इमेज इज बिफोर 5 जुलाई 2017। और बशीराट राइट हुआ था 5 जुलाई को। तो इजीली वी कैन फाइंड आउट दैट द इमेज और द वीडियो इज रॉन्ग। और बाद में जब हम लोगों ने इसको और ज़्यादा सर्च किया, वी फाउंड दैट इट इज़ ए भोजपुरी फिल्म औरत खिलौना नहीं, वहां से एक क्लिप को लिया गया और उसको इट हैज बीन रॉन्गली मिस इंटरप्रेटेड। तो इसलिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज वी हैव टू ऑब्जर्व। जब भी हमारे पास कोई भी इमेज आता है, वेदर इट बी थ्रू व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, देन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली। अगर आप ध्यान से उस पिक्चर को देखते हैं, यू कैन फाइंड आउट सम डिस्क्रिपेंसीज इन द इमेज, और वहां से वी कैन start our investigation or we can easily debunk the fake news. यहाँ जैसे कि फॉर एग्जांपल यू कैन सी दैट ये फेसबुक में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। इसमें दिया गया है कि केरला का एक गाड़ी है, केएल गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है, एमएलए का गाड़ी है विद द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। और पोस्ट में आप देख सकते हैं वहाँ लिखा हुआ है केरल में विधायक पाकिस्तान का झंडा अपनी गाड़ी पर खुलेआम लगाकर घूमते हैं। Ye actually is the claim. A lawmaker from Kerala has hosted Pakistani flag on his vehicle. लेकिन हम लोगों ने जब इस इमेज को क्रॉप किया और इसको सर्च किया तो हम लोगों ने देखा कि ये पाकिस्तान का फ्लैग नहीं है, बल्कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी का फ्लैग है, जो पाकिस्तानी बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, उसका फ्लैग है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान, फ्लैग ऑफ पाकिस्तान एंड पॉलिटिकल पार्टी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, उनका भी नाम फ्लैग। ये इस तरह के इंसिडेंट्स हम बार बार देख सकते हैं कि पाकिस्तान का फ्लैग लहराया गया श्रीनगर में, कश्मीर में, बार बार इस तरह के फेक न्यूज़, फेक वीडियोस हमारे सामने आते हैं। लेकिन अगर हम इसको क्लियरली देखें तो ये एक्चुअली बैनर है और पाकिस्तान का फ्लैग इस तरह से वाइट पोर्शन इन अ पार्ट ऑफ द फ्लैग एंड दिस इज द फ्लैग।
तो इस तरह के इंसिडेंट्स बार बार आते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, और मिसकम्युनिकेशन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। वीडियोस, जैसे कि अभी हम लोगों ने इमेज वेरिफिकेशन देखा, वी कैन ऑल्सो, और इन सारे फेक न्यूज के पोटेंशियल इतने ज़्यादा होते हैं कि दे गोज ऑन वायरल। देख सकते हैं 2.4 के लाइक्स, 12,000 शेयर्स, दिस आर मोर शेयर्ड एंड मोर पॉपुलर कर दिया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा जल्दी वायरल होने लगता है। So it is therefore very much important to understand, and also at the same time debunk the fake news. Let's try to understand how to verify video. In order to verify video, we have a tool called Invid. Invid करके एक टूल है, उसको अगर हम लोग अपने Chrome एक्सटेंशन में ऐड करते हैं, I will show you the website. This is Invid. इसको आप अपने एक्सटेंशन में भी रख सकते हैं, इनविट। थ्रू इनविट वी कैन वेरीफाई। इट इज also available on WhatsApp on your phone, on your Play Store. You can download the app, or you can use the app for video verification. मैंने यहाँ पे अपने कंप्यूटर में मैंने एक्सटेंशन में रखा हुआ है, you can see the tool. Here we have all these features where we can identify videos. हम लोग यहाँ पे की फ्रेम्स देख सकते हैं, यूट्यूब थंबनेल सर्च कर सकते हैं, देन ट्विटर में अगर कोई वीडियो है उसको ही देख सकते हैं, मैग्नीफायर से हम लोग वीडियो को आराम से देख सकते हैं, देन राइट्स, वीडियो राइट्स एनालिसिस, ये सारा चीज़ हम लोग इनविट को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। तो इनविट बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिवर्स इमेज सर्च। एक्चुअली इनविट पे आप जाएंगे, और मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। इनविट पे जाने के बाद अगर आप एक वीडियो यूज़ करते हैं, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक वीडियो लेता हूँ, और ये कंचनजंगा का वीडियो है। मैं इसको यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह का इमेजेस इस वीडियो को बेसिकली इनविट इमेजेस के रूप में तोड़ देती है। It divides the video into the form of image, and from image we can do the image search. और यहाँ देख सकते हैं it is कंचनजंगा। ये गूगल रिवर्स इमेज करने के बाद हम लोगों को मिल जाएगा कि ये कंचनजंगा की तस्वीर है, और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि इट इज माउंटेन कंचनजंगा फ्रॉम दार्जिलिंग। न्यूज सेंस का एक वीडियो है, तो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द इमेज इज फ्रॉम। वीडियो को डिवाइड करते हुए वी कैन सी दैट इट इज वीडियो को डिवाइड करके फिर वी हैव टू डू द गूगल रिवर्स इमेज। सेकेंडली, गूगल रिवर्स इमेज स्मार्ट कीवर्ड सर्च। अगर हम लोग वहाँ पे कीवर्ड भी डाल के सर्च करते हैं तो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई। अगर स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन स्किल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
कि हम लोग कोई भी इमेज, कोई भी वीडियो, व्हेन वी कम अक्रॉस एनी वीडियो और इमेज और इंफॉर्मेशन, अगर हम उसको ठीक से देखें, ठीक से ऑब्जर्वेशन स्किल, अपना दिमाग और उसको कंसंट्रेशन को अगर हम लोग विथ फुल कंसंट्रेशन और खुद ठीक से देखें, तो आराम से वी कैन फाइंड आउट द डिस्क्रिपेंसीज एंड वी कैन इजीली फाइंड आउट वेदर द इमेज इज रॉन्ग और राइट. गुड ओल्ड फैशन जर्नलिज्म. ओल्ड फैशन जर्नलिज्म में नॉर्मली फेक न्यूज अगर आपको वेरीफाई करना है, ओल्ड फैशन जर्नलिज्म मीन्स वी क्रॉस चेक थिंग्स विथ सर्टेन पीपल. जब हम लोग एक स्टोरी करते हैं ओल्ड फैशन जर्नलिज्म में, वी चेक विथ authorities, we check with government, we check with the person with whom the incident has happened. हम उनसे बात करते हैं, फिर we reach out to the district magistrate, we reach out to the superintendent of the police अगर कोई क्राइम की घटना है. उस तरह के ओल्ड फैशन जर्नलिज्म भी अगर हम लोग यूज करते हैं, we can identify certain fake news. Another method is YouTube data viewer. यूट्यूब डाटा व्यूअर के थ्रू भी हम लोग गूगल, इसमें 4 चीज़ें हम लोग कर सकते हैं. एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम यूट्यूब, पोस्टेड ऑन यूट्यूब. ये यूट्यूब डाटा व्यूअर में हम लोग अगर करते हैं तो वी कैन फाइंड आउट कब व्हेन द वीडियो हैज़ बीन अपलोडेड, और वी कैन ऑल्सो एक्सट्रैक्ट थंबनेल्स और उसको फिर रिवर्स इमेज करें तो हम लोगों को इजीली we can locate and identify the video as well. डिसएडवांटेज यूट्यूब डाटा व्यूअर का ये है कि ये सिर्फ यूट्यूब वीडियो ही सर्च कर सकती है, नॉट अदर वीडियो, वीमियो वीडियो और वीडियो फाइल. फॉर एग्जांपल लेट्स चेक डाटा व्यूअर. हम वही यूआरएल यूज करते हैं, उसको चेक करके देखते हैं. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं कि अपलोड टाइम, व्हेन इट इज एक्चुअली अपलोडेड डेट, कब ये अपलोड हुआ था, वी कैन ट्रैक. वी कैन ऑल्सो हैव व्हेन इट हैज बीन अपलोडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, टाइम भी है. इट कैन बी अपलोडेड इनटू लोकल टाइम, इंडियन टाइम के हिसाब से देख सकते हो. अगर कोई फॉरेन वीडियो है तो अमेरिकन टाइम या फिर जिस देश का वीडियो है उसके लोकल टाइम के हिसाब से भी हम लोग देख सकते हैं. एंड एट लास्ट वी कैन ऑल्सो डू रिवर्स इमेज. वी कैन फाइंड आउट द इमेज इज ऑफ कंचनजंगा. इस तरह से डाटा व्यूअर हम लोग यूज करके वी कैन फाइंड आउट वेदर द इंफॉर्मेशन का ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स वी कैन फाइंड आउट. इनविट हम लोगों ने बता दिया. इनविट में भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है, जैसे कि अपलोड टाइम, अपलोड डेट, एंड यू कैन अकॉर्डिंगली वेरीफाई कि उस तरह का इंसिडेंट तब घटा कि नहीं. यू कैन क्रॉस चेक विथ पुलिस, विथ एडमिनिस्ट्रेशन, एंड दैट्स वे that is the way through which you can identify the information whether it is fake or real. इनविड एंड डाटा व्यूअर, यूट्यूब डाटा व्यूअर ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है. यहाँ पे जैसे मैग्नीफायर मैंने टूल्स दिखाया था इनविड पे, अगर मैग्नीफायर यूज़ करें तो यू कैन लोकेट, और ये जो एयरलाइन का नाम है उसको अगर मैग्नीफायर से चेक करें तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द date, time and place of the incident. There is also one more tool. ट्विटर में भी आप यूज कर सकते हैं. ट्विटर का टाइमलाइन भी वीडियो में हम लोग देख सकते हैं. सेकेंडली this is also one of the another tool. Now watch frame by frame.
You can write down the address www.watchframebyframe.com, where you can also YouTube के अलावा Vimeo वीडियो को भी आप देख सकते हैं फ्रेम बाय फ्रेम. यहाँ यू कैन स्लो मो द वीडियो एज वेल. वीडियो को स्लो मोशन में भी आप देख सकते हैं. These are some of the case studies. It is also very much important to identify visual clues. फोटो और फोटोग्राफ और वीडियो में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है. जब आप इन्वेस्टिगेट करते हो, जब आप इमेज वेरिफिकेशन, वीडियो वेरिफिकेशन करते हो, बिल्डिंग लैंडमार्क्स आर वेरी इम्पोर्टेंट. हमेशा अगर हम लोग विथ स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन स्किल, जैसे कि वहाँ पे लिखा था, विथ ऑब्जर्वेशन स्किल अगर हम लोग देखते हैं तो वी कैन फाइंड आउट सम लैंडमार्क बिल्डिंग. वी कम अक्रॉस दैट लैंडमार्क बिल्डिंग, एंड अगर गूगल अर्थ को हम लोग यूज़ करते हैं, विच थ्रू विच वी कैन आइडेंटिफाई द बिल्डिंग. एट द सेम टाइम उस लोकेशन में उस दिन या उसके आसपास कभी कोई घटना घटा कि नहीं, you can find out with the local police, local administration. Secondly, flags, logo, emblems, badges helps identify the region or a particular group. जैसे कि हम लोगों ने फ्लैग वाला इंसिडेंट देखा, तो हम लोगों ने उसको चेक किया, और कभी कभी कोई बैज, कोई एम्बलम, कोई लोगो सर्टेन एरिया से स्पेसिफाइड होती है, एंड वी कैन फाइंड आउट अकॉर्डिंगली. कमेंट्स ऑन सोशल मीडिया, कभी भी हम लोग सोशल मीडिया में कोई भी फेक न्यूज़ पोस्ट अगर होती है, तो वहाँ कोई ना कोई कमेंट सेक्शन में, अगर इफ वी गो थ्रू द कमेंट्स, वी विल फाइंड आउट दैट समवन is there who will be insisting on the thing, giving all the clues that this is a fake post. If you verify that kind of comments as well, we will come across that the information is fake or real. So on social media, chances are there always an in-house Sherlock. Sherlock means कोई डिटेक्टिव कभी ना कभी कहीं किसी भी फेक न्यूज़ के नीचे वो बोलता ही रहेगा कि दिस इज फेक, और वो अपने अपने रीजंस देते रहेंगे. इफ वी फाइंड आउट एंड वी इफ वी क्रॉस चेक ऑल दोस रीजंस, वी विल कम अक्रॉस दैट द इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग. नंबर प्लेट्स, अगर हम लोग किसी भी फेक वीडियो और फेक इमेजेस में अगर नंबर प्लेट्स देखते हैं, व्हीकल रजिस्ट्रेशन प्लेट से भी वी कैन आइडेंटिफाई. जैसे वेस्ट बंगाल का WB, अरुणाचल प्रदेश का AR, आसाम का AS, इस तरह के नंबर प्लेट से भी वी कैन आइडेंटिफाई द लोकेशन एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ द प्लेस, और वी कैन ट्राई फाइंड आउट वेदर द इंफॉर्मेशन इज फेक और रियल. कभी कभी अपार्ट फ्रॉम नंबर प्लेट, अगर ध्यान से वीडियो देखा जाए तो कभी कभी लैंग्वेज से भी पता चलता है. अगर हिंदी में अगर बोल रहा है तो नॉर्थ बंगाल हो सकता है, बंगाली में बोल रहा है तो बंगाल हो सकता है, असमीज में बोल रहा है तो असम हो सकता है. इस हिसाब से वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट. क्लोथिंग, जब आप वीडियो और इमेज देखते हैं उसमें द वे द पीपल, अगर हम लोग ध्यान से पिक्चर को देखेंगे, कुछ ना कुछ लोग होंगे जो स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक कल्चरल ड्रेस, कल्चर होता है, रिलीजन होता है, अकॉर्डिंगली द क्लोथ्स आर डिजाइन इन दैट वे एज वेल. तो वहाँ से भी हम लोग उन उन लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रीजन से है, कि यहाँ के ड्रेस पहने हुए हैं, तो वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द थ्रू क्लोथिंग. वेदर, अगर हम लोग ध्यान से कोई भी इमेज देखते हैं, इफ यू पे अटेंशन टू द वेदर एंड इन एन इमेज, दिस कैन बी ऑल्सो क्रॉस रेफरेंस, कि उस दिन इस तरह का बारिश की घटना घटी थी, या फिर तूफान आया था, या फिर ज़्यादा धूप था. वी कैन चेक विद द वेदर डिपार्टमेंट, और वेदर रिपोर्ट्स भी क्रॉस चेक कर सकते हैं. साइनेज, बहुत तरह से, अगर इमेज वीडियोस में हम लोग इफ माइन्यूटली फ्रेम बाय फ्रेम अगर देखें, तो बहुत समय कुछ ना कुछ साइन बोर्ड, बिल बोर्ड, बैनर्स हमको दिख जाएंगे, विच कैन हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग, फाइंड आउट द लोकेशन. कभी कभी साइन बोर्ड्स में फ़ोन नंबर्स भी रहते हैं. वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट those phone numbers, and we can directly call the person and check with the information whether this information is right or wrong.
एंड मुझे लगता है कि आज वी हैव ऑलरेडी टच्ड व्हाट एग्जैक्टली इज फेक न्यूज़, how to identify image, how to identify video. So मुझे लगता है वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 10 minutes मोर. और आपको आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन हो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन शेयर इट विथ मी ऑन द मैसेंजर. एंड if you guys have any question, you can just unmute your connection and you can ask the resource person directly. Hello, sir. So, what is the right thing to do when we spot a fake news? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू, सबसे पहले तो आप जब भी आपके पास कोई भी फेक न्यूज़ आए, तो प्लीज 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 विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन, विदाउट प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, डोंट शेयर द इंफॉर्मेशन. जब तक आप कन्विंस नहीं हो, देन प्लीज डोंट शेयर द इंफॉर्मेशन. और जैसे कि आज मैंने आप लोगों को कुछ टूल्स दिखाया है, मेनली the fake news comes in the form of fake images, image, video और information के रूप में आता है. तो this kind of information आप अपने तरीके से ऑब्जर्वेशन स्किल, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप लोगों को बोला साइन बोर्ड, और इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो. अगर कोई लोकेशन का ट्रेस आपको मिल जाता है, देन यू कैन चेक विद द अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, जैसे कि नॉर्मल जर्नलिज्म में हम लोग करते हैं. with after you are convinced that the information is right, only that you share the information with the people. सबसे पहला थिंग, क्योंकि सबसे पहला थिंग है, प्लीज 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 डोंट शेयर द इंफॉर्मेशन. क्योंकि आप अगर शेयर करते हो तो और 4 लोग शेयर करेगा, और दैट वे इट बिकम्स वायरल. और आप अगर शेयर करते हो, यू आर ऑल्सो वन ऑफ द कैरियर ऑफ फेक न्यूज. being a journalist, being a journalism student, future journalist हो आप लोग, तो it is very important to play a responsible role. क्योंकि फ्यूचर में हम लोगों को ही लोग ट्रस्ट करते हैं, जर्नलिस्ट को ट्रस्ट करते हैं. तो इथिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन आवर पार्ट टू वेरीफाई दोस इंफॉर्मेशन बिफोर रिलीजिंग और शेयरिंग द इंफॉर्मेशन विद एनीवन एल्स. We have another question from our 4th semester student, Shushmita. She is asking that all the medium to verify the fake news that you have shown, can those be used on our smartphones? जैसे yes, InVid, as I have shown you that InVid is available on Play Store. Then YouTube Data Viewer, which is a product of Amnesty International, जो सिर्फ YouTube data extract करने में help करती है. That also can be done using smartphone. At the same time, smartphones, we have TinEye, then InVid, Frame by Frame, YouTube Data Viewer. All these tools are easily available. Yes. सुष्मिता केरकेटा, उनको आई थिंक योर क्वेश्चंस, योर आंसर, मतलब you got the answer what you wanted to know, what you wanted to understand. Okay. Here recently we have debunked, you can see, ये फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा निकला था. ये हम लोगों ने परसों ही डिबंक किया है. आसनसोल की घटना है, तो वी हैव शेयर्ड दिस इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. एक पिक्चर आया था आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, लेकिन ये वाला मिसलीडिंग पिक्चर था. एक्चुअली ये वाला मिसलीडिंग पिक्चर था, जहाँ पे आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बोर्ड को दिखाया गया था कि 3 लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश, उर्दू और हिंदी में. यहाँ पे इस तरह से दिखाया गया था कि बंगाली लैंग्वेज इज नॉट बीइंग यूज्ड एंड गिवन द ड्यू क्रेडिट, आसनसोल बीइंग इन वेस्ट बंगाल.
लेकिन इस विषय पे हम लोगों ने फिर we spoke to mayor of आसनसोल जितेंद्र तिवारी who elaborately said कि ये गलत है information. So first and foremost thing, before utilizing tools, we can directly reach out to the people. We also spoke to SP of Asansol Durgapur Commissionerate, Police Commissioner of Asansol Durgapur Police Commissionerate Sukesh Kumar Jain, and he has also cleared the doubt, saying that the person who has created the post has been arrested and investigation is on. Actually ये हुआ था कि ये जो बोर्ड था बंगाली बोर्ड ऊपर था और ये 3 लैंग्वेजेस में बोर्ड थोड़ा नीचे था, लेकिन उसको रॉन्गली यूज किया गया है. ये पोर्शन का फोटो ले लिया गया और it has been presented in a way that I will show you the this is the image, this is the fake news which was which we at News Sense debunked recently. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला फेक इमेज सर्कुलेट हुआ था सोशल मीडिया में. अब देख सकते हो कि यहाँ पे इंग्लिश में, उर्दू में और हिंदी में लिखा गया और सेइंग कि देयर इज नो मेंशन, द साइन बोर्ड इज नॉट इन बंगाली. सो बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया. एक्चुअली दिस इज द रियल पिक्चर. बांग्ला में ऊपर में लिखा था, ये बोर्ड नीचे था, लेकिन जिन लोगों ने ये फेक न्यूज़ क्रिएट किया गया है ये पोर्शन उन्होंने यूज़ किया और इसको सर्कुलेट किया. तो व्हेन वी स्पोक टू द मेयर ऑफ Asansol, he clearly said that it was renovated and signboard दो अलग अलग तरीके से 2 बार लगाया गया था और इसके वजह से ये misconception फैला. Secondly, we also spoke to Sukesh Kumar Jain, IPS Police Commissioner, Asansol Durgapur Police Commissionerate, who also cleared the doubt that the information which has been viral on social media is fake and they have already arrested the person who has created the fake information. और ये आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल पुलिस ने भी बाद में इस इंफॉर्मेशन को पोस्ट किया. द पर्सन हु पोस्टेड and edited the picture on the building of Asansol Municipal Corporation has been arrested. Others who forwarded it with the mischievous comment are also being arrested. So it is also very important क्योंकि it is a punishable offense. जैसे कि हम लोग शेयर करते हैं, don't share or forward any misleading information on social media platforms including Facebook, Twitter, WhatsApp. By doing so, you are also becoming someone who is creating panic and confusion among the larger mass, and this is a punishable offense. So yes, go ahead, please complete your So this is very important. The first and foremost thing, don't share the information which whatever information we receive without identifying, without being convinced whether the information is fake or real. Don't share the information, since by doing so, yes, tell me. So I think Disha asked a question as to what are the provisions of punishment for people who are sharing the fake news. She must have got the answer for her question with this example that you presented right now. So moving on to some next questions, sir. Dada, I'll just take a couple of more questions. Yes, please. Student here. Mudalia Raghav, how do we explain the difference between fake and opinions? Facts and opinions. Facts and difference is, fact is fact. Opinion may vary. Means your opinion may be different from me. My opinion is different from Abhishek sir. Opinions are always it varies. And but fact is only one. Fact हमेशा जो है वो fact रहता है. So this is the only difference I can say, the fact and opinion के बीच में. हम लोग
फेक न्यूज़ जो हम लोगों को मिलता है उस पर हम लोग ओपिनियन क्रिएट करते हैं, अकॉर्डिंगली वी कीप ऑन शेयरिंग, हम अपना इनपुट डाल के उसको शेयर कर देते हैं फेसबुक पे, देन व्हाट्सएप पे। दिस इज रॉन्ग। और जो फैक्ट है उसको पहले वेरीफाई करना चाहिए कि एक्चुअली इस तरह का घटना घटा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त ने मुझे भेजा है तो मैं उसको शेयर कर देता हूँ। दोस्त भी तो गलत हो सकता है, एक बार वेरीफाई कर लेने से आगे जब भी आप वेरीफाई करोगे वो ठीक रहता है। और अगर आपने आपके दोस्त ने कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको शेयर किया तो उसको आप बोल सकते हैं कि आप जो इन्फॉर्मेशन आपने मुझे भेजा है वो रॉन्ग है। Opinions are always there. I have my own political views, you have your own political views, accordingly उस हिसाब से लोग पोस्ट करते रहते हैं पॉलिटिकल व्यूज के हिसाब से, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल व्यूज के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो रियल है उसको आप जैसा सोच रहे हो वही नहीं है। यस, निकिता दीक्षित सर, व्हाट डू यू थिंक इज द मेन यूज द फेक न्यूज are circulated in such a huge numbers? As I have already said, मतलब एकदम शुरू में आप लोगों को मैंने बोला था, फेक न्यूज मेनली 3 ऑब्जेक्टिव्स से तैयार होता है इन ऑर्डर टू अर्न। क्योंकि फेक न्यूज अगर आप सोशल मीडिया में फैलते हैं, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा वायरल होता है। when a post become viral, it also leads to more engagement, and more engagements means more revenue. Today it is a digital age and people are exploring all avenues digitally कि how to earn things. So इस तरह के फेक रिपल फेक इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा वायरल होती है और इस तरह से कुछ लोगों को अर्निंग रेवेन्यू भी दिलाती है। एट द सेम टाइम सेकेंडली ये फेक न्यूज़ इसलिए भी किया जाता है क्योंकि इन ऑर्डर टू हार्म, इन ऑर्डर टू डिफेम समवन, सम मेनली द पॉलिटिकल पार्टीज यूज फेक न्यूज अगेंस्ट अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज। तो इस बेसिस पे भी फेक न्यूज सर्कुलेट होती है। और थर्ड है, पीपल टेंड टू बिकम मोर फेमस, बहुत जल्दी फेमस हो जाना चाहते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं जो वायरल होती है और उसको लगता है वो फेमस होता जा रहा है। तो अकॉर्डिंगली कुछ लोग पैशनेटली इस चीज को करती है ताकि उनको फेम मिले। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जैसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन व दूसरे तरीके के ऑर्गेनाइजेशन, those who want to defame other organization or opposition party, or third is in order to earn more revenue. These are the primarily main reasons why the fake news are mainly circulated. संगीता सरकार सर, फेसबुक पे जो न्यूज़ स्टेटस होता है वो ओरिजिनल न्यूज़ है या फेक न्यूज़ है, तो वो कैसे समझ पाए? फेक न्यूज़ सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कभी भी फेक न्यूज़, कभी भी आप उसको ऑब्जर्वेशन, एकदम क्लियर ऑब्जर्वेशन से आप अगर देखो तो वहाँ कभी ना कुछ डिस्क्रिपेंसीज होते हैं। आइदर द इमेज एंड द रिलेटेड टेक्स्ट और इमेज में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी। और इमेज, जैसे कि मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाए, इमेज बहुत समय फोटोशॉप किया जाता है और उस फोटोशॉप करने से आपको डिस्क्रिपेंसीज पता चल जाता है। आइदर द कंटेक्स्ट with which the image has been used may be right, but the content which is carrying with the image or the video may be wrong। तो उसमें आप देख सकते हो कि ये एक डिस्क्रिपेंसीज आप क्रिएट कर सकते हो। फोटोशॉप आप देख सकते हो, फोटोशॉप में भी फोटोशॉप भी किया जाता है अब बहुत समय इमेजेस को। तो इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज है। आप अगर ऑब्जर्वेशन स्किल आप क्लियरली रख के देखो तो हमेशा आप देख सकते हो कि ये फेक न्यूज़ है। आराम से यू कैन आइडेंटिफाई, अगर आप ध्यान से कोई भी फोटो, इमेज और इन्फॉर्मेशन को देखोगी तो वहाँ डिस्क्रिपेंसीज निकल जाएगा। देन यू क्रॉस चेक विद द ऑथोरिटीज। शुभम दोलोई sir, presently a fake news came that in Durga Puja from Panchami there will be a curfew from 5 o'clock to 4 o'clock. It is true। मैं आपको दिखाता हूँ, वी हैव ऑलरेडी डिबंक्ड, इसलिए मैंने बोला था आपको अगर हम लोगों के सोशल मीडिया और हमारे न्यूज सेंस को आप देखें तो वी हैव ऑलरेडी डिबंक्ड दिस स्टोरी।
I am showing you the story so for your easy understanding. ये वाला इंफॉर्मेशन आया था सामने। श्रीमंत दुलोई शुभम दोलई, आपका यही वाला हम लोगों ने भी डिबंक किया न्यूज सेंस में। दुर्गा पूजा होगा या नहीं होगा विथ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, ये वाला फेक सर्कुलेट हुआ था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। बाद में इसमें दिस ईयर one cannot do pendal hopping during Durga Puja because government of West Bengal has taken a decision of imposing night curfew from evening 5 p.m. to next day 4 p.m. Not more than 5%. 5 visitors are allowed inside the puja pandal. On the Ashtami day, flowers cannot be offered. During Anjali, mask is a must. Anyone having symptoms will have to undergo corona test. इस तरह का मिसलीडिंग पोस्ट निकला था, जो बाद में वेस्ट बंगाल पुलिस ने भी डिबंक किया। और प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी खुद 8 सितंबर को क्लियर किया कि दिस इज अ फेक इमेज, फेक व्हाट्सएप मैसेज आर डूइंग राउंड्स सिंस मॉर्निंग, spread by IT cell of a political party, saying people will not be allowed to step out during the puja. The pandemic is on, all celebration have been cancelled or observed in a restricted manner, but there has been no meeting regarding Durga Puja so far. How can people say things like this? और बाद में वेस्ट बंगाल पुलिस ने अरेस्ट भी किया। द पर्सन हु क्रिएटेड द पोस्ट हैज बीन फेक पोस्ट अबाउट दुर्गा पूजा ऑन व्हाट्सएप एंड फेसबुक हैज बीन अरेस्टेड। आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में लास्ट 5 months में 259 पर्सन हैव बीन अरेस्टेड फॉर पोस्टिंग एंड फॉरवर्डिंग फेक न्यूज, communal news and mischievous post. So that's why it is very important not to share or forward any kind of fake news. Sir, we'll just take two more questions because time is running out. I think it's 2:30. It's probably going to be 2:30. 12:30. I'm sorry. 12:30. So the next question I'll take is from Apurva Pradhan. She is asking as to how do we make people know what is fake news and what is not, because people don't read the news properly and they just post it. So how to make people aware? She's asking. Can you once again repeat the question, please? So she is asking as to how we can make other people aware. Like today, as we have become aware about the fake news, how can we make other people aware? Because a lot of people share these fake news without even understanding that they are fake. That's why it is very good and a very apt question she has asked. It is very relevant since today you have participated in the session. You also have covered a lot of way through which you can debunk information, debunk images, videos, and information. That's why it is very important to make people aware. At the same time, organization like us in News Sense, Google News Initiative, we keep on doing fact checking of any relevant fake news. If you come across, I will appeal every one of you to share those information with us. You will get the number from Abhishek sir, or also I am sharing the number where you can share the fake information. We will debunk that for you, and also at the same time you also use the methods which I have already shown you. Using all those methods you can debunk. For debunking a story, you have to first and foremost, it takes nearly 2 to 3 hours to debunk a story using tools. And secondly, if you want to cross check information, if it is from somewhere from your locality, first and foremost thing is to inform the police, since it is the law and order situation is with police. If such a, since fake news does lot more of harm, so it is first and foremost thing is to inform police. And at the same time, if you can share those information with us, we can debunk those information for you. At the same time, we can
share all those debunked stories. You can follow the page of News Sense. As I have already shared the link, our Twitter handle, our News Sense YouTube page, Facebook page. We keeps on posting uh, debunked fake stories on our social media platforms on regular basis. You share those information with your uh, friends, family members, and those who are sharing those information with you. You can share them those debunked stories with them as well. Yes. So we'll just take a couple of more questions. Shahana has asked as to, as we can see, there's these days the parody and the satire pages on social media are growing at a large number. So what is the government, or what can be done to these pages which are sharing these kind of fake news and fake images? Like, is there any way, she's asking, is there any way to sue these pages or the admin of these pages? Yes, Sana, it is also very relevant and very timely question. Basically, such kind of parody and satirical pages, it it is very important that since every day we come across some new pages, parody or satirical pages, government at the same time judiciary, it is a matter of court and law. It comes under cyber law, where actions are being taken against those who are creating such kind of fake and satirical parody with an intention to harm or defame any person or an organization. Such information, they are doing it in their own way. When a complaint has been registered with police, when the what when such complaints has been registered with the authority, they takes action against such kind of pages. And it is very since we have seen the growth of fake news in last 4 to 5 years in a very large number, since the thing is very new. And so the law is also is being refined, and at the same time it has been since the fake news ecosystem in India and in the world is, it has been there since ages, but because of the democratization of digital space, it has become very rampant and very viral in social media platforms. So according to the lawmakers are also working on it, and how to come out with a strict laws to check such such action by people or organizations. So I think Shorindam asked a similar kind of question. I think he also got must have got his answer. He asked as to what the government is doing to restrict this kind of fake news. So as Sir already said, that the government is, and the government and the judiciary both are working in close lines to cope up with the menace of fake news, and they are refining the laws that exist in our land. And hopefully with more laws and more stringent punishment provisions in the law, we can have a full stop in the spread of fake news. I'll take just last question for this session. This is again from Raghav. He has asked, I think, a very pertinent question. He has asked as to people believe in fake news, but in what circumstances does like people believe in fake news more? What makes the fake news more believable to the people? We are living in an ecosystem where fake news are emerging every new day. We also doubt the actual and real news. So it is Raghav, we can say that it is the basic instinct of every human being. We are curious. It is very important. It is positive as well as negative, both way. Since we live curiously, we curiosity drives our passion, our adventure. So when we come across any kind of curious or kind of unnatural thing, we tend to believe that this kind of news are very important and at the same time very interesting, which makes us interesting. And
when we share all this information in a group among our friend, among our relative, then it becomes viral. And since I have already shown that there are two areas mainly, fake news is understood by misinformation and disinformation. Disinformation, there are certain group of people who are with an intention are doing harm to an organization or an individual. But misinformation, the larger section of people who unknowingly keep on sharing those information because of parody, because of curiosity. Now at the time of pandemic, we come across lot more of information about corona vaccine, medicine related to how to cure yourself, how to prevent yourself from coronavirus. Every day, every new day, every new individual come with a remedy that with this remedy we can cure diseases. So people love to create curiosity. We love to break information. We love to bring out solution to a big problem. These are the main factors why the fake news takes its role and it becomes viral in no time. Kia Shah, what is the right thing to do when we spot the fake news? The right thing is not to share. First and foremost thing, when you are convinced that it is fake news, then don't share the information with anyone. And if the information is related to any kind of which may lead to any kind of rumor, you must inform police, you must inform the authority. You also can share those information with us. We can also debunk, we at Newsense can also debunk those information for you. Yes. I think with this, we'll end the question answer session. Yes. Okay, so thank you so much, Mr. Joydeep Dasgupta, for your valuable time and for your valuable presentation. I think students have learned a lot about fake news, and more importantly, they have learned as to how to debunk the fake news whenever they come across any kind of fake news, as they are rampant in social media these days. And these young people, they are constantly on social media, and they are constantly in touch with lots of friends. So I think they can be a carrier of or carrier of the right kind of messages to the society, and they can educate few more people about the harm that the fake news causes, and how to debunk them. I think it has been a learning experience for them. It has been a learning experience for me too. And I think with that, I will call it a day, and I'll thank you once again, your organization, and sharing the information and sharing your knowledge with us. Thank you so much. I thank you on behalf of the Mass Communication Department, North Bengal University, and I'm thanking you on behalf of all my students here in North Bengal University. Thank you so much, Abhishek sir. Thank you so much, students. In case of any doubt, any clarification, you can reach out to me. Abhishek sir is there. We are in close touch with each other. And if you have any confusion, you can write it to us. Thank you, Abhishek sir.